We are in the chapter of the genetic engineering techniques. Today we are going to discuss the transfer of the recombinant vector inside the host cell for its expression or for its propagation. Today we will discuss the transfer of the recombinant vector in the bacterial cell. We have discussed the different techniques in the previous lecture. DNA extraction, the plasmid extraction has been discussed, obtaining gene of interest by different methods. In the previous lecture, we formed the recombinant vector, that is cutting and joining of the fragments by using restriction enzymes and DNA ligase. Restriction enzyme is used for the cutting and the DNA ligase is used for the joining. We have formed the recombinant vector. Now we have to introduce the recombinant vector inside the host cell. Today we will discuss this step, introduction of the recombinant vector into the host cell. In the coming lecture we will discuss the next techniques. Inserting foreign DNA into cells or the host cell, or the transfer of the recombinant vector into the host. The recombinant DNA molecule or the recombinant vector that is formed during the ligation must be returned or transferred to host cell for propagation or expression. जो ligation के दौरान हमने recombinant vector बनाया उसकी expression के लिए if we want to produce a product or if we want to produce the gene cloning उसकी propagation के लिए that recombinant vector must be introduced into the host cell. There are several ways, several methods used to introduce the recombinant DNA into the host cell. The choice of method is usually determined by the type of vector and the host cell being used. अब कौन सा मेथड हमने सेलेक्ट करना है, मेथड की सिलेक्शन की बेस वेक्टर पे है और होस्ट सेल पे है. हम कौन सा वेक्टर इंट्रोड्यूस यूज कर रहे हैं और कौन सा होस्ट सेल यूज कर रहे हैं. तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड द टेक्निक विल बी सिलेक्टेड based on the vector type of vector and the host that is used for the introduction or that is used for as expression system. Transfer of the recombinant vector in bacteria. The very important method, the basic method for the transfer of the recombinant vector in the bacteria is the transformation. Transformation, generally it is the uptake of the naked DNA from the environment. It is called the transformation. It is also used in the transfer of the recombinant vector inside the host cell. The technique of transformation represents the simplest methods available for getting recombinant DNA into the cells. In the context of the cloning in E. coli cells, transformation refers to the uptake of the plasmid DNA. अगर हम E. coli को इस्तेमाल करें तो transformation means the uptake of the plasmid DNA. Transformation is also used more generally to describe uptake of any DNA by any cell. कोई भी cell कोई भी DNA uptake करेगा, that process is called transformation. Transformation in bacteria was first demonstrated in 1928 by Frederick Griffith by using Streptococcus pneumonia, different strands, S strands and R strands. That was the basis of the genetic material as hereditary material, and that was proved later by the Avery, McLeod and McCarthy. Then experimentally proof was given by the Hershey and Chase experiment that DNA is the hereditary material. तो ट्रांसफॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया फर्स्ट टाइम 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने. However, not all bacteria can be transformed easily. ये जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकें. अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैक्टीरिया को हमने इस काबिल बनाना होता है कि वो जो फॉरेन डीएनए है उसको अपटेक करने के काबिल हो सके. To effect the transformation of the E. coli, the cells need to be made competent. Competent cells वो cells होते हैं जो फॉरेन डीएनए को, फॉरेन वेक्टर को, रिकमेंडेड वेक्टर को इजीली रिसीव कर सकें. That type of host or the bacteria is called competent bacteria. This is achieved by soaking the cells in an ice-cold solution of calcium chloride, which induces competence in a way that is still not fully understood. जो बैक्टीरिया को कंपेटेंट बनाने के लिए उसको आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोक किया जाता है. अब कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोक करने के बाद बैक्टीरिया कंपेटेंट हो जाता है. हाउ इट मेक्स द बैक्टीरिया कंपेटेंट, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन और फुली अंडरस्टूड.
Transformation of competent cells is carried out by mixing the plasmid DNA with the cells. अब हमने कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट करने के बाद उसको जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है उसके साथ हम उसको मिक्स करेंगे. Incubating on ice for 20 to 30 minutes. After the mixing the competent cells with the plasmid DNA or the recombinant DNA having the desired gene, then it will be incubated on the ice for 20 to 30 minutes. Then the giving a brief heat shock. इन 20 to 30 मिनट आइस पे इंक्यूबेशन के बाद उसको क्या करना है, दोबारा हीट शॉक देना है फॉर 2 मिनट्स एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड विच अपीयर्स टू एनेबल द डीएनए टू एंटर द सेल्स. तो इससे जो डीएनए है, जो रिकम्बिनेंट वेक्टर है, वो इजीली बैक्टीरिया में एंटर हो जाएगा. तो बेसिक स्टेप्स क्या है? आइस कोल्ड solution of calcium chloride treatment, then mixing and incubate on ice for 20 to 30 minutes, then heat shock for 2 minutes at 42 degrees centigrade. These are the steps involved in the transformation of the plasmid or recombinant vector inside the bacterial host. How we transform the bacteria? A bacteria that is the normal bacteria having no ability to uptake the foreign DNA. To make the cell competent, we treat the cell with the calcium chloride, ice cold solution of the calcium chloride. Ice cold solution of the calcium chloride makes the host cell competent, that is able to uptake the foreign DNA or the plasmid. उस कंपिटेंट सेल को कंपिटेंट बनाने के बाद प्लाज्मिड को मिक्स करेंगे जिसके पास हमारा डिजाइन जीन मौजूद है. अब इसकी मिक्सिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये सेल कंपिटेंट सेल है, इट हैज एबिलिटी टू अपटेक द फॉरेन डीएनए और द प्लाज्मिड. अब इसके बाद इसको हमने आइस कोल्ड पे रखना है फॉर 20 टू 30 मिनट्स, देन हीट शॉक देना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 मिनट्स. आफ्टर हीट शॉक द प्लाज्मिड दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स. नाउ दिस सेल इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म सेल्स. ट्रांसफॉर्म सेल्स कौन सा होता है? Transform cells have a cell having our desired plasmid, having our recombinant vector that is transformed inside the cell by the calcium chloride treatment or the heat shock treatment. These are the steps involved in the transformation of the vector, transformation of the plasmid inside the host cell, and the cell after transformation is called the transform cell. The transformed cells are usually incubated in nutrient broth at 37 degrees centigrade for 60 to 90 minutes to enable the plasmid to become established and permit phenotypic expression of their traits. उसके बाद जो cells transform हो जाते हैं उसको हमने incubate करना है nutrient broth पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे for 60 to 90 मिनट्स तक के जो प्लाज्मिड है वो अपने आप को enable करे और अपने जो phenotypic expression है उसको जो phenotypic traits हैं उनको express करें. The cells can then be plated out onto selective media for propagation of cells harboring the plasmid. उसके बाद उसको selective media पे grow करेंगे that will use for the propagation of the plasmid. There is a limitation of the transformation process that during transformation only a very small percentage of competent cells become transformed, that representing uptake of a fraction of the plasmid DNA that is available. तो जो competent cells हैं उनकी very small percentage transform होती है, uptake करती है. जो plasmid है जो available होते हैं उसकी जो very small fraction will uptake by the competent cells. But the transformation is very essential technique. अगर उसकी जो क्वांटिटी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एसेंशियल टेक्निक है, बेसिक टेक्निक है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिकम्बिनेंट वेक्टर. With care, transformation can yield up to 10 raised to power 9 transform cells per microgram of input of DNA. Per microgram of DNA, it can produce 10 raised to power 9 transformants. Although transformation frequencies of around 10 raised to power 6 or 7 transformants per microgram are more often achieved in practice. तो generally हम ये जो quantity है 10 raised to power 6 to 7 quantity, normally हम इस quantity को transformation की achieve कर सकते हैं. तो अगर हम care से काम करें with by using specific techniques or by using specific protocol, we can achieve the maximum number of the transformants. Many biological supply companies offer a variety of competent cells strains that have been pre-treated to yield high transformation frequency. आजकल जो biological supply companies हैं वो
प्री ट्रीटेड जो कंपिटेंट सेल्स हैं, कंपिटेंट स्ट्रैंड्स हैं, वो सप्लाई करती हैं, दैट प्रोड्यूस द हाई यील्ड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी. Transfection is the second step of the transfer of the recombinant vector inside the host cell. तो transfection को पहले हम first time we have used the transfection for the transfer of the genome or for the transfer of the desired gene by using the phage, lambda phage. That's why it is the transfection. Transfection actually it is the hybrid of the transformation and the infection. Mainly we use the transfection for the transfer of the recombinant vector inside the eukaryotic cell. So transfection is also used in the prokaryote as well. Transfection is the hybrid of transformation and infection. Transformation and infection का hybrid है. Historically, the term transfection referred specifically to cellular infection with a viral nucleic acid from a bacteriophage, bacteria infecting virus. जब बैक्टीरियोफेज से हमने इन्फेक्ट किया सेल को, उसके थ्रू जब हमने अपना डिजायर जीन, टारगेट जीन इंसर्ट किया, दैट वाज टर्म एज द ट्रांसफेक्शन. ट्रांसफेक्शन इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन, the only difference being that phage DNA rather than the plasmid is involved. अगर हम plasmid को इस्तेमाल करते हैं, that is transformation. अगर हम phage DNA को इस्तेमाल करते हैं, that is called the transfection. Transfection is the standard method for introducing the double-stranded replicative form of an M13 cloning vector into E. coli. जब M13 का replicative form इंट्रोड्यूस करेंगे, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफेक्शन. इन विट्रो पैकेजिंग ऑफ द DNA. We have to introduce our desired gene inside the bacteria. For that purpose, we can introduce our desired gene in the capsid of the bacteriophage, specifically lambda bacteriophage. Lambda bacteriophage के capsid में हमने अपना desired genome, desired gene पैक करना है, और इस lambda phage को हमने फिर इन्फेक्ट करवाना है बैक्टीरिया को. जब हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, चूंकि जब बैक्टीरिया को कोई भी फेज इन्फेक्ट करता है तो वो अपना जीनोम इंजेक्ट करता है. तो जब ये जो फेज जो हमने इन विट्रो पैकेज किया, जिसमें हमारा डिजायर जीन मौजूद है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये बैक्टीरिया में हमारा जीन ट्रांसफर करेगा. देन अवर जीन विल एक्सप्रेस और अवर जीन विल इंक्रीज इट्स कॉपी नंबर डिपेंडिंग अपॉन द गोल ऑफ द क्लोनिंग स्ट्रेटजी. तो लैम्डा फेज में हमने अपने जो डिजायर जीन उसको पैक करना है. पैक करने के बाद लैम्डा फेज की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है. बैक्टीरिया विल कैरी आवर डिजायर जीन एंड आवर डिजायर जीन विल इंक्रीज इन नंबर और इट विल एक्सप्रेस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. तो लैम्डा फेज में जो स्पेसिफिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें दो किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. लेटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल है. मेनली जो लैम्डा है वो लाइसोजेनिक करता है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन होती है तो वो लेटिक साइकिल की तरफ मूव करता है. तो ड्यूरिंग द लेटिक साइकिल ऑफ फेज, they are specifically lambda phage, the phage DNA is replicated to form concatemer. तो concatemer हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज concatemer? के जो lambda phage का जीनोम है, इसकी बहुत सी कॉपीज बनती हैं, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी एंड 4 कॉपीज. These copies are attached with each other by the cos sites, by the cos sites. और जब इसकी मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन के दौरान ये cos sites से इसको रिसेक्शन एंजाइम कट करते हैं, और जो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो जाकर हेड में पैक हो जाते हैं, और डिफरेंट जो जीनोम है, डिफरेंट फेज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं. तो कनकेटमर फॉर्मेशन होती है. कनकेटमर फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द DNA that having different segments of the DNA attached with each other with the cos site. तो लिटिक साइकिल के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट होते हैं तो वो कनकेटमर बनाता है. दिस इज वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ द जीनोम लिंक्ड टुगेदर बाय द cos sites. Okay, when the phage particles are assembled, the DNA is packaged into the capsid. जब phage particle assembled होते हैं, उसका DNA जो वो काम पैक होता है कैप्सिड में, which involves cutting the DNA at the cos sites using phage encoded endonucleases. जो endonucleases cos sites को कट करते हैं, उसको फिर अपने कैप्सिड में जाकर पैक कर देते हैं. इस तरह कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बनते हैं और फिर वो रिलीज आउट हो जाता है. इसी स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जो डिजायर जीन उसको ट्रांसफर करना है. मैच्योर फेज पार्टिकल्स आर thus produced ready to be released on the lysis of the cell and capable of infecting other cell. इस तरह जो मैच्योर फेज बनते हैं, नॉर्मली ये प्रोसेस होता है लिटिक साइकिल के दौरान, और
they are ready to release on the lysis में cell burst होता है and these bacteriophage will infect other cells. This process normally occurs in vivo. एक बैक्टीरिया में हो रहा है. The particular functions being encoded by the phage genes. However, it is possible to carry out the process in the test tube. इसी प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, which enables recombinant DNA that is generated as a concatemer to be packaged in the phage particle. हमने जो अपना recombinant DNA है उसको हमने उसका concatemer बनाना है ताकि उसको हमने क्या करना है, फेज पार्टिकल में पैक करना है. पैकेजिंग रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स कोडेड बाय द लैम्डा जीनोम, बट दीज कैन बी प्रिपेयर्ड एट ए हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम सेल्स इन्फेक्टेड विद डिफेक्टिव लैम्डा फेज स्ट्रैंड्स. अब हमने जो लैम्डा की जो प्रोटीन्स है उनको प्रोड्यूस करना है. लैम्डा की प्रोटीन आएगी तो हमने जो अपना कंकेटमर बनाया है उसको फिर हम अपना जो कैप्सिड है उसमें स्टोर करेंगे और फिर कंप्लीट वायरस हमने प्रोड्यूस करना है. There are two different systems can be used for the production or for the packaging of the bacteriophage or for the production of the proteins. It may be the capsid protein, it may be the tail and fibers, etc. तो दो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं. The one system that is called with a single strand system. With a single strand system, the defective lambda phage carries a mutation in the Cas sites so that these are not recognized by the endonuclease that normally cleaves the lambda catenans during phage replication. तो हमने mutated lambda phage को replicate करवाना है, डिफेक्टिव लैम्डा फेज को रिप्लिकेट कराना है. उसमें म्यूटेशन क्या है, उसमें म्यूटेशन है कास्ट साइट पे. जब कास्ट साइट में म्यूटेशन होगी तो उसके जो एंडोन्यूक्लियासेस हैं जो कास्ट साइट को टारगेट करते हैं वो उसको क्लीव नहीं करेंगे. जब क्लीव नहीं होगा तो मैच्योर बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस नहीं होंगे. जब मैच्योर बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस नहीं होंगे इट मीन उसमें कैप्सिड बनेगा, उसमें प्रोटीन्स बनेंगे, उसमें फाइबर्स बनेंगे. तो उसमें कास्ट साइट को हमने म्यूटेट करने हैं. पहला स्टेप क्या है, first method is the infecting of a bacteria with a defective lambda bacteriophage having the mutation in the Cas site. This means that the defective phage cannot replicate. वो replicate नहीं करेगा क्योंकि Cas sites में mutation है. Cas site में जब mutation है तो उसको endonuclease टारगेट नहीं करेगा, क्लीव नहीं करेगा. जब क्लीव नहीं करेगा तो जो डीएनए है वो पैक नहीं होगा कैप्सिड में. चूंकि डिफेक्टिव फेज रिप्लिकेट नहीं कर रहा बट it can synthesize the packaging proteins, though it does direct synthesis of all the proteins needed for packaging. तो ये सारी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. उसमें कैप्सिड प्रोटीन है, उसमें जो उसकी टेल है और टेल फाइबर, सारी प्रोटीन तो बनेगी लेकिन कंप्लीट बैक्टीरियोफेज नहीं बनेगा. तो हमें प्रोटीन्स चाहिए. यहाँ पे हमने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है क्योंकि हमने आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में हमने कंकेटमर बना दिया है जिसके पास हमारा डिजायर जीन मौजूद है. द प्रोटीन्स accumulate in the bacterium and can be purified from the culture of the E. coli infected with the mutated lambda. वो प्रोटीन जो बनेगी जो बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन हैं, दोबारा बता रहा हूँ, कैप्सिड है, उसमें टेल है, टेल फाइबर्स हैं, वो सारे हम E. coli से प्यूरिफाई करेंगे. उसमें चूंकि जीनोम मौजूद नहीं होगा, द प्रोटीन प्रिपरेशन इज देन यूज्ड फॉर इन विट्रो पैकेजिंग ऑफ द रिकम्बिनेंट लैम्डा मॉलिक्यूल्स. अब इन्हीं प्रोटीन्स को हमने इन विट्रो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं जिसमें हमारा रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होगा. दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट लैम्डा phage or recombinant lambda molecule. सिंगल स्टैंड पैकेजिंग सिस्टम. तो सिंगल स्टैंड पैकेजिंग सिस्टम में हमने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जो हमने फेज इस्तेमाल किया वो डिफेक्टिव फेज है. अब उसमें डिफेक्ट क्या है, उसमें म्यूटेशन क्या है, उसमें म्यूटेशन है कि उसकी जो कास्ट साइट है उसमें म्यूटेशन है. लैम्डा डीएनए हैविंग द म्यूटेशन इन द कास्ट साइट. जब कास्ट साइट में म्यूटेशन है तो इसको ये जो हमारे एंडोन्यूक्लियस सॉरी जो इसका एंडोन्यूक्लियस है वो उसको बैक्टीरियोफेज एंडोन्यूक्लियस को कट नहीं कर सकता. जब कट नहीं करेगा तो उसकी पैकेजिंग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. तो E. coli SMR10 strain lambda DNA has defective Cas sites, so it cannot be cleaved by the endonucleases and it cannot peg inside the capsid of the lambda phage. But Cas site तो mutated हैं लेकिन
रिप्लिकेशन जो कंप्लीट वायरस नहीं बन रहा, लेकिन प्रोटीन्स बन रही हैं। प्रोटीन्स कौन सी हैं? लैम्ब्डा प्रोटीन्स का हेड भी बन रहा है, सॉरी लैम्ब्डा वायरस का हेड भी बन रहा है, लैम्ब्डा वायरस का जो टेल भी बन रहा है, लैम्ब्डा वायरस की जो वो उसमें फाइबर्स भी बन रहे हैं, उसमें दूसरी प्रोटीन्स भी बन रही हैं जो उसको असेंबल करती हैं। सारी प्रोटीन्स, लैम्ब्डा प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द बैक्टीरिया, दे आर एक्युमुलेटेड इन द सेल्स, इनको हम बाद में प्यूरिफाई कर लेंगे और फिर इन्हीं प्रोटीन्स को हम पैकेज के लिए इस्तेमाल करेंगे और उस बैक्टीरियोफेज को हम फिर इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को, दैट विल इजीली ट्रांसफर अवर डिजायर जीन इन द बैक्टीरिया। तो फर्स्ट स्टेप इज द सिंगल स्टैंड पैकेजिंग सिस्टम। सिंगल स्टैंड पैकेजिंग सिस्टम में डिफेक्टिव फेज ने इन्फेक्ट किया, डिफेक्टिव फेज ने जब इन्फेक्ट किया तो उसमें कासाइड म्यूटेशन है, जब कासाइड म्यूटेशन है कंप्लीट वायरस नहीं बनेगा, लेकिन वायरस की प्रोटीन्स बनेगी। वायरस की प्रोटीन्स को हमने प्यूरिफाई करना है, उसमें अपना डीएनए पैक करना है और फिर उसको इन्फेक्ट करवा देना है। With the second system that use two defective lambda strands, that are two defective lambda strands are needed with the second system, उसमें हमें दो lambda strands को इस्तेमाल करने, दोनों defective होंगे। Both of these strands carry a mutation in a gene for one of the components of the phage protein code। तो दोनों किसी एक प्रोटीन के लिए म्यूटेशन होगी उसमें, जो प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज करते हैं, जो प्रोटीन कोड के लिए जीन्स होते हैं। With one strand the mutation is in gene D and with the second strand it is in gene E। तो एक स्ट्रैंड वो होगा जिसमें जीन डी में म्यूटेशन है और दूसरा स्ट्रैंड जिसमें जीन ई में म्यूटेशन है। अब जीन ई और डी अगर हम रिवाइज करें अपना लेक्चर जो हमने बैक्टीरियोफेज का जीनोम पे डिस्कस किया, तो उसमें जीन डी और ई आर द प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द कैप्सिड। Neither strand is able to complete an infection cycle in E. coli because in the absence of product of the mutated gene, the complete capsid structure cannot be made। इसमें complete capsid structure नहीं बनेगा। क्यों? जब complete capsid structure नहीं बनेगा तो जो complete infection cycle नहीं होगा। क्यों? कि दोनों डी और ई प्रोटीन क्या है, मिसिंग है। लेकिन जो हमारे कुछ पोर्शन हमारे पास सिंथेसाइज होगा वो डी के म्यूटेटेड वाले बैक्टीरिया में और कुछ सिंथेसाइज होगा ई वाले में, वहां से हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, उसको हम फिर उसमें अपना डीएनए पैक कर लेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल अदर कोड प्रोटीन जीन्स एक्युमुलेट। प्रोटीन ई और प्रोटीन डी, उसके एक में प्रोटीन ई नहीं बनेगी, दूसरे में डी नहीं बनेगी, लेकिन बाकी सारे प्रोटीन्स लाजमी बनेंगे, वो एक्युमुलेट होंगे बैक्टीरिया में। An in vitro packaging mix can therefore be prepared by combining live cells of two culture of cells, one infected with the lambda D strand, the other infected with the lambda with E strand। तो हम दोनों कल्चर को मिक्स करेंगे, उससे अपनी जो प्रोटीन्स है वो आइसोलेट कर लेंगे, that will use for the packaging। The mixture now contains all the necessary components for in vitro packaging। अब उस मिक्सचर में जो हमने दोनों के कल्चर से आइसोलेट किया, उसमें वो सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो इन विट्रो पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं। A two-strand packaging system. Strand A are E. coli BHB2688 strand, इसमें lambda defective फर्सेंसा प्रोटीन E, इसमें प्रोटीन E नहीं बन रही, प्रोटीन D बन रही है। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है BHB2690, ये lambda defective है फर्सेंसा प्रोटीन D, इसमें प्रोटीन D नहीं बन रही। ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ पे D बन रही है, E नहीं बन रही, यहाँ पे ई बन रही है और डी नहीं बन रही। तो इसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, इसमें भी सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, इसमें सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, सिर्फ इसमें प्रोटीन ई नहीं बन रही, इसमें प्रोटीन डी नहीं बन रही। तो जब इसमें प्रोटीन डी सॉरी ई है, इसमें प्रोटीन डी है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमें आइसोलेट हो जाएंगे। प्रोटीन डी भी है, प्रोटीन ई भी है। तो अब इन दोनों का असल डिफेक्टिव करने का मकसद क्या है? डिफेक्टिव करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर हम इसको डिफेक्टिव नहीं करेंगे, डिफेक्टिव ई नहीं करेंगे, तो इसमें डी भी होगा, ई भी होगा, कंप्लीट वायरस बनेगा, मैच्योर होगा, रिलीज आउट हो जाएगा। तो हमें वो हमारे जो पैकेजिंग के लिए मशीनरी है वो रिक्वायर्ड मशीनरी हम आइसोलेट या प्यूरिफाई नहीं कर सकेंगे। इसमें भी अगर सारे मौजूद हैं तो वो कैप्सिड बन जाएगा, वो सारा कंप्लीट वायरस बन जाएगा और रिलीज आउट हो जाएगा। तो हमने वायरस के कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करना है, हमने इसलिए ये डिफेक्टिव वायरस इस्तेमाल, यहाँ पे एक डिफेक्टिव वायरस इस्तेमाल किया, यहाँ पे दूसरा डिफेक्टिव वायरस इस्तेमाल किया, दोनों के मिक्सचर को हमने कंबाइन किया, उससे हमारा पैकेजिंग मटेरियल आइसोलेट हुआ, उसमें हम अपना डीएनए पैकेज करेंगे और फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरिया में। दिस इज अ टू स्ट्रैंड पैकेजिंग सिस्टम, जिसमें एक हमने लैम्ब्डा डिफेक्टिव फॉर प्रोटीन ई है, दूसरा लैम्ब्डा डिफेक्टिव फॉर प्रोटीन डी है।
With both systems, single strand or double strand system, formation of the phage particle is achieved simply by mixing the packaging proteins with the lambda DNA assembly. Assembly of the particles occurs automatically in the test tube. The packaged lambda DNA is then introduced into the E. coli cells simply by adding the assembled phages to the bacterial culture and allowing the normal lambda infective process to take place. उसको हमने फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाना है, वो इजीली उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा. जो नॉर्मल साइकिल होता है फेज का, उसको इस्तेमाल करते हुए हमारा जो डिजायर जीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा ई कोलाई में. इन विट्रो पैकेजिंग जो समरी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो लैम्डा डीएनए है हैविंग द कैटिनिन्स मीन के हमारा जो सेगमेंट है उसमें कास्ट साइट्स के साथ हमारा जो डिजायर जीन है वो अटैच्ड है. अब ये जो लैम्डा प्रोटीन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द SMR10 और मिक्सचर फ्रॉम द BHB2688 और द BHB2690, दोनों का मकसद एक ही है कि हमने जो लैम्डा की पैकेजिंग मशीनरी है वो आइसोलेट करनी है. अगर सिंगल स्टैंड से करते हैं या डबल स्टैंड से करते हैं. डबल स्टैंड का फायदा क्या होगा? डबल स्टैंड का फायदा ये होगा कि हम उसमें जो कॉम्प्लिकेशन वो ये होगी कि दोनों को मिक्स करना होगा, और जो सिंगल स्टेप है उसमें हम एक ही बैक्टीरिया से अपने उसको प्योरीफाई कर लेंगे. तो उसके बाद क्या होगा? ये हमारा जो मशीनरी है ऑफ द बैक्टीरियोफेज, ये हमारा लैम्डा डीएनए है, इसको हमने पैक किया. अब दिस लैम्डा फेज पार्टिकल्स कैरिंग पैकेज डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें हमारा डिजायर जीन मौजूद है. तो अब दिस इज कॉल्ड इन विट्रो पैकेजिंग. ये इन विट्रो पैकेज हो गया. अब इसको हमने क्या कर देना, इन्फेक्ट कर देना बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में ये इजी ट्रांसफर हो जाएगा. और उसमें अब डिपेंड करते हैं हमारे गोल पे कि इसने नंबर को इंक्रीज करना या एक्सप्रेस होना है. ओके, दिस इज द इन विट्रो पैकेजिंग. जो हमने असेंबली बनाई है, हेड है, टेल है, फाइबर्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, उसमें अपना डीएनए पैक किया और फिर उसको इन्फेक्ट कर दिया इकोलाई को फॉर द ट्रांसफर ऑफ आवर जीन. Electroporation. Electroporation is also called electrotransfer or electropermeability. It is a transfer of the genetic material or the desired gene inside the host cell. It mainly used for the transfer of the desired gene in the bacteria, in the plant, and in animal cell as well. In animals, it mainly used for the transfer of drugs. Electroporation, as the term indicates, uses an electrical current to form microscopic pores in the membrane of the cells. करंट को इस्तेमाल करते हुए मेम्ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक पोर्स बनाने हैं. आफ्टर the formation of the pores, microscopic pores, the DNA then enters the cells through the pores. तो उन pores से फिर DNA सेल में एंटर हो जाएगा. Electroporation is generally applicable to all cells. Mainly those with cell walls often must be converted to protoplasm first. तो मेनली उन सेल्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो सेल है उसको हमने उसमें से जो सेल वॉल है उसको रिमूव करना. जब सेल वॉल किसी भी सेल से रिमूव होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटोप्लास्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइमेटिकली रिमूविंग द सेल वॉल्स, देयरबाय अलाउइंग मोर डायरेक्ट एक्सेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब सेल वॉल रिमूव होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेस इजी होगी. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेस इजी होगी, उस पे इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट होगा, उसमें पोर्स बनेंगे और इजीली ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल. हाउ इलेक्ट्रोपोरेशन वर्क्स? मेनली इलेक्ट्रोपोरेशन में सेल्स आर मेनली प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन इन एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोपोरेशन बफर. इलेक्ट्रोपोरेशन बफर में हम सेल को प्लेस करते हैं एंड पुट इनटू एन इलेक्ट्रोपोरेशन कोवेट. उसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन कोवेट में प्लेस करते हैं. देन डीएनए इज एडेड. द कोवेट इज कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई and the cells are subjected to high voltage electrical pulse of the defined magnitude and length, mainly 100 to 150 वोल्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन. तो हमने उसको अपरेटस में रखना है. उसमें अपरेटस का जो सेटअप है उसमें पावर सप्लाई है, उसमें लेड है, इसमें कवेट है, और कवेट के साथ जो हमारे इसमें सेल्स प्लेस्ड हुए हैं, सेल्स के साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं दैट आर यूज्ड फॉर द इट मे बी द कैथोड और द इलेक्ट्रोड. तो वो इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे और जो हमारे सेल सस्पेंशन में प्लेस्ड हैं उनसे वो जब करंट पास होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाएंगे और जो हमारा डीएनए इस सस्पेंशन में वो ट्रांसफर होगा हमारे सेल में. सो इलेक्ट्रोपोरेशन इन समरी वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ the DNA or material inside the cell by using electric pores in the plasma membrane by using electric current. Summary of the electroporation process. Electroporation में cell
बिफोर द पल्स और बिफोर द अप्लाई ऑफ द वोल्टेज नॉर्मल सेल है, सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल है, कोई पोर्स मौजूद नहीं है। ये जो मटेरियल है इट मे बी द ड्रग और द जीन दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर इनसाइड द सेल। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स। जब पोर्स फॉर्मेशन होंगे, जो मॉलिक्यूल है, डीएनए है, जो कोई भी ड्रग है वो इजीली इन पोर्स से ट्रांसफर हो जाएगी। After the transfer of the drug or after the transfer of the gene within the cell will heal itself and it will be the complete cell. So इलेक्ट्रोपोरेशन में पोर्स बने, पोर्स के थ्रू मटेरियल एंटर हुआ और वो मटेरियल एंटर होने के बाद प्लाज्मा ने अपने आप को हील किया एंड द ड्रग और द जीन दैट इज इनक्लोज इनसाइड द सेल एंड ड्रग और द जीन is now present inside the cell. Protoplast fusion. Protoplast fusion mainly used for the exchange of genetic material between two bacteria by producing or by the fusion of their protoplast. Protoplast are the cells having no cell wall. The cell wall of the bacteria are enzymatically digested, producing the protoplast. These are the protoplast having the no cell wall. These two protoplast cells are mixed. They are mixed with each other and treated with the PEG polyethylene glycol। polyethylene glycol से ट्रीट करने के बाद प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाएंगे। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे द सेगमेंट्स ऑफ द टू क्रोमोसोम रिकम्बाइन, दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में रिकम्बाइन होंगे। दीज आर नाउ द रिकम्बिनेंट सेल्स। रिकम्बिनेंट सेल्स देन ग्रो एंड दे विल फॉर्म द न्यू सेल। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन is also used for the transfer of the genetic material, but mainly it is used for the exchange of the genetic material between two cells। अगर इस सेल के पास हमारा डिजायर जीन मौजूद है तो ये इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है। That's all about the transfer of the genetic material in the bacterial cell. We have discussed the methods that are used for the transfer of the recombinant vector, like the transformation, transfection, in vitro packaging, electroporation, and the protoplast fusion. In the next lecture, we will move towards the introduction of the recombinant vector into non-bacterial cells like the plants, animals, and yeast. Thank you so much.